Namaskar bachchon, I am Poonam Bagga welcoming you in your maths class. We are studying chapter 4 quadratic equations. We now know that a quadratic equation is one in which the highest power of the variable is 2 or we say its degree is 2. Also we know that many real life situations can be expressed with the help of a quadratic equation. Today we are going to learn how to solve a quadratic equation and that too by the method of factorization. But before that, we need to know what are the roots of a quadratic equation. The root of a quadratic equation is that value of variable which satisfies the equation. So, a real number alpha is called a root of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, a not equal to 0 if a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0. This means that this real number alpha, it is said to be a root of this equation if we replace this variable x by alpha in this equation, then we get LHS and RHS both equal. आप देखिए यहाँ पर RHS है इस इक्वेशन का 0 और जब हम x की जगह ये रियल नंबर अल्फा रिप्लेस कर दें इसी इक्वेशन में तब भी हमें RHS अगर 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और इसलिए ये वैल्यू अल्फा इस इक्वेशन का एक रूट है and we call it also a solution of the quadratic equation. So if we are asked to find the roots of an equation or if we are asked to find the solution of an equation, both mean the same, that we have to find the value of x which satisfies this equation. Also, finding the roots of a quadratic equation is known as solving the quadratic equation. तो अब अगर हमें क्वेश्चन में कहा जाए कि solve this quadratic equation, this means we will have to find the roots of the equation or the solution of the equation or the values of x which satisfy the given equation. Now the question arises, how many roots are possible in case of a quadratic equation? For this, let us see. The zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are the same. Let us recall how we find the zeros of a quadratic polynomial. We find them by equating the polynomial to 0. And when we equate this polynomial to 0, we actually get this quadratic equation. And so, the zeros of a quadratic polynomial and the roots of the quadratic equation both mean the same. Also, in case a quadratic polynomial has real zeros, it can have at most 2 zeros. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 ज़ीरोस पॉसिबल हैं क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी डिग्री है 2 और इसीलिए अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल रूट्स. इसी तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी मैक्सिमम 2 रूट्स आर पॉसिबल. लेट अस रिकॉल द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इफ दीज आर द एक्सिस, then you can recall that the graph of a quadratic polynomial is a curve called parabola. If we draw it, it may look like this. Now, it intersects the x-axis at maximum 2 points. आप देखिए एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये. इन दो पॉइंट्स पे ये पैराबोला x-axis को इंटरसेक्ट कर रहा है और इन्हीं पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट से हमें दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस मिलते हैं और क्योंकि ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए मैक्सिमम 2 zeros आर देयर एंड सिमिलरली देयर आर 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इन केस दिस पैराबोला ओनली टचेस द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट. मान लीजिए एक ही पॉइंट पे पैराबोला एक्स एक्सिस को टच कर रहा है. ऐसे केस में दोनों जीरोस एक पॉइंट पे मर्ज हो गए और दोनों जीरोस जो पहले डिस्टिंक्ट थे अब वो सेम हो गए, इक्वल हो गए और ऐसे केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे. नाउ वी टेक वन एग्जाम्पल टू सी हाउ टू चेक वेदर अ गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट. Here it is, determine whether the given values are solution of the given equation or not. ये हमें दी हुई है एक quadratic equation और x की एक वैल्यू दी है और ये चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट है या नहीं. इसके लिए हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसका LHS लेंगे पहले, उससे स्टार्ट करते हैं और इसमें हम x की जगह 1 रिप्लेस करते हैं. तो देखिए क्या मिलेगा, 5 × 1 स्क्वायर
यहाँ पर 1 रख दिया हमने, -2 into 1, if we place 1 here and then -3. This will give you 5 into 1 square is 5, -2 ones are 2, -3. This is equal to 5 minus 5 and this is equal to 0, and 0 is the RHS. So this is equal to RHS. तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं x की वैल्यू 1 रखने पर. Therefore, yes, 1 is a solution of this given quadratic equation. Okay, we take the second one also. Now it's another quadratic equation और अब हम x की जगह 2 रिप्लेस करके देखते हैं LHS में कि क्या हमें ये इक्वल टू RHS मिल रहा है या नहीं. तो इसके लिए 3 into 2 square minus 4 into 2 plus 2. देखिए आप यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दिया है. इससे हमें मिलेगा 3 into 4 minus 4 to the 8 plus 2. This is 12 minus 8 plus 2. This is 12 minus 8 4 plus 2 it's 6 and it is not equal to 0 and so not equal to RHS. और इसलिए ये दी हुई वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है. So a no here. Now you can easily check whether a given value is a solution of this given equation or not. But now the question arises how to find this value. ये वैल्यू फाइंड कैसे करें? और उसके लिए हमें चाहिए methods of solving a quadratic equation and there are 3 such methods. By factorization method, by completing the square and by quadratic formula we can solve any quadratic equation, and in this video we will be learning about the method of factorization. Let us focus on it. Here it is. For a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, in this method the first step is multiply a and c. a क्या है? x square का कोएफिशिएंट और c है कांस्टेंट टर्म. तो पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा. देन फाइंड फैक्टर्स ऑफ ac. मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा ac. इसके ऐसे फैक्टर्स फाइंड करेंगे विच एड टू b. b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. तो इस नंबर के हम ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे जो ऐड होकर हमें b दें. और अगर हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर रहें तो ऐसे फैक्टर्स लेंगे जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने पर हमें ये मिडिल वैल्यू दें b. और इसके साथ ही वी विल स्प्लिट द मिडिल टर्म. देन ग्रुप इनटू कॉमन फैक्टर्स एंड गेट 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन. आप देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स बाहर करने से और ग्रुपिंग करने से हमें 2 लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. एंड देन इक्वेट द लीनियर फैक्टर्स टू 0 and get the roots of the equation. फिर हम उन लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे और हमें इस इक्वेशन के 2 रूट्स मिल जाएंगे. We do this by one example. Here it is. Find the roots of the equation x square plus 5x plus 6 equal to 0 by factorization. The equation is x square plus 5x plus 6 equal to 0. यहाँ आप देखेंगे x square का कोएफिशिएंट it is 1 और 1 into 6 it's 6 और 6 के हमें ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनका सम हमें मिले 5. तो वो हम जानते हैं it is 2 into 3 is 6 and 2 plus 3 is 5. तो easily हम यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं. We can write it as 2x plus 3x plus 6 equal to 0. बाकी सब टर्म सेम है, सिर्फ इस 5x को हमने स्प्लिट कर दिया है 2x plus 3x. और ये 2 और 3 कहाँ से लिए हमने? फैक्टर्स ऑफ 6 से. ठीक है. नेक्स्ट अब हम इन दोनों टर्म्स का ग्रुप करेंगे और लास्ट 2 टर्म्स को ग्रुप करेंगे. इन दोनों टर्म्स में जो भी कॉमन फैक्टर है उसे बाहर लेंगे. वी टेक इट आउटसाइड x एंड नाउ x इनसाइड देयर आर 2 x's. x स्क्वायर इज देयर सो 1x आउटसाइड एंड 1 इनसाइड प्लस अब ये x तो बाहर है और बचेगा 2 अंदर प्लस हियर ऑल्सो टेक 3 एज द कॉमन फैक्टर आउट. यहाँ से मिलेगा x और 3 2s are 6 and this is equal to 0. Now this is same way as we used to find the factors of a quadratic polynomial. It is the same way. Now x plus 2 is common. ये दोनों फैक्टर्स बिल्कुल सेम आने चाहिए दोनों ब्रैकेट्स में. अगर ये अलग अलग आ रहे हैं तो समझ जाइए हमने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है. और अब ये कॉमन फैक्टर को हम बाहर ले लेंगे x plus 2 को और अंदर हमें यहाँ से मिलेगा x
और यहाँ से मिल रहा है +3 एंड दिस इज इक्वल टू 0. नाउ यू सी देयर आर 2 लीनियर फैक्टर्स. ये हो गया पहला लीनियर फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर है 1 और ये है सेकेंड लीनियर फैक्टर जिसमें फिर से वेरिएबल की पावर है 1. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स इज 0. तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा तभी तो प्रोडक्ट 0 आ रहा है. सो दिस मीन्स दैट आइदर x plus 2 is equal to 0 or x plus 3 is equal to 0. This gives us x equal to -2 or x equal to -3. Getting the point here? And now the roots of this equation are -2 and -3. ठीक है? Let us try to understand this factorization by some visualization also. Let us take it. This is the equation and now just look at this term x square. We take this square of side x units. This is the length and this is the breadth also. So this is a square of side x units. Then we take this 5x. यहाँ देखिए आप, ये strips हैं, 5 strips are there, each of width 1 unit. Okay. And so total 5 units is its length. और आप देखेंगे इसकी breadth is equal to x. ये है x. तो actually this area is nothing but 5 into x. तो हमने इन दोनों को अभी यहाँ पर ले रखा है. This is the term x square and this is 5x. ठीक है? Now if we join them together, we are adding them. Let us join them. Now we have added x square and 5x. हमने इन दोनों को add कर दिया. This is x square and this is 5x. Now let us separate these 2 strips from here and take them upwards. ये लास्ट की दोनों strips को लेकर हम ऊपर लगाएं अगर, तो हमें कुछ ऐसा फिगर मिलेगा. देखिए आप, this is the square of side x. Here we are having 3 units. This is 3 units and here we are having 2 units now. तो अब ये टोटल लेंथ हो गई x plus 3 और ये टोटल लेंथ हो गई x plus 2. तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है दोनों ही पार्ट्स को अलग अलग करके. अब आप देखिए, टू गेट अ कंप्लीट रेक्टेंगल दिस एरिया इज मिसिंग, दिस एरिया इज वेकेंट, वी नीड टू फिल दिस एरिया और उसके लिए हमें चाहिए ये फिगर. देखिए आप, दिस इज नथिंग बट 2 into 3 दैट इज 6. अगर हम इस 6 को भी अब ले आए और इसमें मर्ज कर दें तो ये एक कंप्लीट रेक्टेंगल हमें देगा. लेट अस डू दिस एंड नाउ वी गेट वन कंप्लीट रेक्टेंगल. आप देखिए, दिस रेक्टेंगल इज देयर विद लेंथ x plus 3 units एंड breadth इज x plus 2 units. यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे, दिस इज x, दिस इज 2 units, अगेन दिस इज x here and this is 3 units. तो हमें मिल गया एक कंप्लीट रेक्टेंगल representing this equation or x square plus 5x plus 6 equal to 0. Isn't it interesting? This is the visualization. We now get perfection by taking some examples from your book. This is example 3 from your book. Find the roots of the equation 2x square minus 5x plus 3 equal to 0 by factorization. So we begin by taking the equation once. 2x square minus 5x plus 3 equal to 0. और पहला स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप इज टू मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट ऑफ x square, वो है 2 एंड दिस कांस्टेंट टर्म विच इज 3. 2 into 3 इट इज 6. और अब हमें 6 के फैक्टर्स लेने हैं जिनका सम हमें दे इक्वल टू 5. तो हम जानते हैं 2 into 3 इज 6 and 2 plus 3 is 5. So here we write 2x square माइनस इस 5 की जगह हम ले रहे हैं 2 plus 3 x plus 3 equal to 0. तो सब कुछ सेम रखा है, बस इस 5 की जगह हमने ले लिया है 2 plus 3. ओपन द ब्रैकेट, यू विल गेट 2x square minus 2x minus 3x. देखिए आप, यहाँ से ये माइनस और ये प्लस, इन दोनों पर फोकस करिए आप कि ये कैसे माइनस आ रहा है. दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस. So minus into plus will give us a minus here. So remember these sign changes every time. And then we have plus 3 equal to 0. अब हम grouping करेंगे. First 2 terms we will group together and the last 2 terms together. इन दोनों terms में से आप देखेंगे 2x is common.
टेक इट आउटसाइड, 2x, तो एक x बाहर है, एक अंदर रहेगा, 2 तो बाहर है ही, माइनस ये पूरा 2x बाहर है तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1, क्योंकि जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x इंटू 1 विल बी 2x, तो इसलिए जब पूरा का पूरा फैक्टर बाहर जा रहा है तो वहाँ हम उसकी जगह ब्रैकेट में रखेंगे 1। यहाँ पर देखिए आप 3 इज कॉमन, सो -3, और अब अंदर क्या आएगा, 3 तो बाहर है, x अंदर, और जब भी यहाँ माइनस होगा तो ये साइन चेंज होएगा और हमें मिलेगा यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, क्योंकि 3 बाहर है उसकी जगह 1, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये ध्यान रखिएगा, वेन एवर वी हैव अ माइनस हियर वी विल चेंज दिस साइन। ऐसा इसलिए कि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप देखिए वी विल गेट -3x एंड माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, तो ये ओरिजिनल फॉर्म रहे इसके लिए यहाँ पर चेंज होगा साइन जब भी हम यहाँ पर माइनस को कॉमन लेंगे। नेक्स्ट यू सी x -1 x -1 बोथ आर द सेम फैक्टर्स, तो हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। टेक दिस कॉमन फैक्टर आउटसाइड, x -1 को बाहर लिया, यहाँ से मिलेगा हमें ये 2x और यहाँ से मिलेगा हमें -3, दिस इज इक्वल टू 0, एंड नाउ वी नीड टू फाइंड द रूट्स। कैसे मिलेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक 0 है, सो दिस इम्प्लाइज आइदर x -1 इज इक्वल टू 0 और 2x -3 is equal to 0. From here we get x equal to 1 और x equal to 3/2. -3 RHS में जाके +3 और फिर 2 डिवीजन में आ जाएगा और इससे हमें मिल गई x की 2 वैल्यूज। और we say the roots of the equation are 1 and 3/2. Okay, I hope it is clear to you. This is the same way as we used to find the zeros of a quadratic polynomial. It is the same method and I hope you have done it very well. Next we have one more example. Find the roots of the quadratic equation 6x square minus x minus 2 equal to 0. अब आप देखिए यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट टर्म है -2, तो हमें इनके प्रोडक्ट से मिलने वाला है -12। और अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे। अगर न्यूमेरिकली 12 के बारे में ही सोचें तो हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए 12 के जिनका डिफरेंस हो 1। यहाँ मिडिल टर्म है -1, तो न्यूमेरिकली इट इज़ इक्वल टू 1, तो हम 12 के ऐसे फैक्टर्स लेंगे जिनका डिफरेंस हो 1 एंड दोज फैक्टर्स आर 4 × 3, 4 3 = 12 और क्योंकि ये -12 है तो इनमें से एक फैक्टर माइनस का होगा और आप देखिए यहाँ मिडिल टर्म ये -x है तो इसका मतलब बड़ा फैक्टर इट विल बी ऑफ माइनस साइन। 4 बड़ा फैक्टर है और वो नेगेटिव होगा तभी तो इनका सम हमें नेगेटिव मिलेगा बीच में, इसलिए जो दो फैक्टर्स हैं वो हैं -4 एंड 3। तो आप या तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इसे 6x स्क्वायर -4x + 3x -2 इक्वल टू 0। अगर आप प्रोडक्ट को शुरू से ही -12 लेके चलें और फिर आप देखिए -4 × 3, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो बड़ा फैक्टर माइनस लेना है और इससे हमें पेयर मिल गया -4 + 3, तो हम डायरेक्टली मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। और अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि न्यूमेरिकली 6 2 = 12 होता है एंड 4 3 = 12 एंड 4 - 3 is 1, तो हम यहाँ पर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस इस 1 की जगह हम ले सकते हैं 4 - 3 और फिर x -2 इक्वल टू 0। तो अगर आपको ये डायरेक्टली लिखने में समझ में नहीं आ रहा है तब आप यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को लेते हुए इस तरह से भी लिख सकते हैं। दिस विल गिव यू आफ्टर ओपनिंग 6x स्क्वायर -4x और माइनस प्लस 3x -2। तो अगर आप चाहें तो आप इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हैं और अगर डायरेक्टली लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरह से भी पहले स्प्लिट करके फिर आप ओपन कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट ग्रुप फर्स्ट 2 टर्म्स एंड द लास्ट 2 टर्म्स। फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है आप देखिए 6 एंड 4 बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 2, तो 2 कॉमन है एक तो, और x भी दोनों में है तो x को भी कॉमन ले लेते हैं बाहर। और अब अंदर क्या बचेगा 2 3 = 6, सो 3
एंड एक्स स्क्वायर, 1x आउटसाइड 1 इनसाइड, माइनस x तो बाहर है और 2 2 ज़ा 4, सो 3x माइनस 2। यहाँ देखिए आप, इन दोनों ही टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है और तब ऐसे केस में हम लेंगे 1 एज द कॉमन फैक्टर, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। सो वी टेक आउट 1 and in between we have 1 into 3x is 3x and 1 2s are 2. So here we have equal to 0. अब आप देखिए 3x minus 2, 3x minus 2. Both the factors are same, so we are doing it rightly. Take this factor outside. Common factor को बाहर लिया और यहाँ से हमें मिलेगा 2x और यहाँ से plus 1. This is equal to 0. Now this means that either 3x minus 2 equal to 0 or 2x plus 1 equal to 0. This means that either x is equal to 2 upon 3 or x is equal to minus 1, plus 1 इधर जाके minus 1 और 2 आ गया डिनोमिनेटर में, so it is minus 1 by 2. And so we can easily write down the roots of this quadratic equation now. The roots of the equation are two by 3 and minus 1 by 2. And you can always verify your answer by placing these values in the equation. आप इन values को equation में रखकर अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं. Let us try to get this. The equation is 6x square minus x equal to 0. It's minus 2 equal to 0. यही है हमारी इक्वेशन. देखिए आप, और हमारी वैल्यूज आई हैं 2 by 3 एंड minus 1 by 2. ये रूट्स आए हैं, इनको इसमें रख के देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं. 6 into 2 by 3 होल स्क्वायर माइनस 2 by 3 minus 2. LHS में रख रहे हैं हम. 6 into 4 by 9 minus 2 by 3 minus 2. Now we can divide by 3. 3 3s are and 3 2s are. This will give you 8 by 3 minus 2 by 3 minus 2. Solve it. 3 तो LCM है ही. 8 minus 2 you will get 6 minus 2. Now this is nothing but 2 and 2 minus 2 is 0. So this is equal to RHS. So this value is absolutely correct. ठीक है. Next we can check this value also. इसके लिए 6 into minus 1 by 2 whole square minus minus 1 by 2 minus 2. LHS में रख रहे हैं हम इस वैल्यू को x की जगह. This is 6 into 1 by 4 minus minus plus 1 by 2 minus 2. We can divide by 2. 2 3s are, 2 2s are. Again take the LCM as 2. 3 plus 1 it is 4 and minus 2. 4 by 2 is 2 minus 2. This is equal to 0 and this is equal to RHS. Hence we can verify whether the answer that we have got is correct or not. Got it? Next, find the roots of the quadratic equation 3x square minus 2 root 6x plus 2 equal to 0. So here we have one root also in between, root 6. Let us see how to do. 3 into 2, it is 6. और अब हमें 6 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनका सम हमें मिले 2 root 6. तो आप देखिए, अगर हम लेते हैं 2 into 3 और 6 into 1, ये दोनों ही हमारा पर्पस सॉल्व नहीं कर रहे हैं. हमें चाहिए ऐसे फैक्टर्स जिनमें हमें मिले रूट 6, और इसके लिए हम 6 के फैक्टर्स ले सकते हैं रूट 6 इंटू रूट 6, और हम जानते हैं रूट 6 स्क्वायर इज 6 इटसेल्फ. सो वी विल टेक दीज टू फैक्टर्स और आप देखेंगे रूट 6 प्लस रूट 6 ये हमें देगा 2 रूट 6. सो वी आर गेटिंग आवर पर्पस सॉल्व्ड. वी राइट हियर 3x स्क्वायर माइनस, और अब ये 2 रूट 6 की जगह हम लिखेंगे रूट 6 प्लस रूट 6 x प्लस 2 इक्वल टू 0. इसे खोलते हैं. 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x, और ये माइनस प्लस हमें देगा माइनस, अगेन रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0.
नाउ वी विल ग्रुप दीज फर्स्ट टू टर्म्स। और आप देखिए यहाँ पर दोनों में हमें कुछ भी कॉमन अभी तो नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 और √6 को फर्दर ब्रेक करते हैं। 3 को भी हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, देन वी हैव x स्क्वायर, और √6 को हम ब्रेक कर सकते हैं √2 इंटू √3, देन वी हैव x। तो देखिए आप, क्या अब हमें कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल यहाँ देखिए आप, √3x इसमें भी है और इसमें भी, इट इज़ द कॉमन फैक्टर। तो हमने क्या किया, 3 को भी √3 इंटू √3 फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि √3 स्क्वायर इज 3 इटसेल्फ। और इसी तरह से √6 को भी ब्रेक कर दिया, √2 इंटू √3। और यहाँ से अब हम इजीली कॉमन फैक्टर्स देख पा रहे हैं। इसी तरह से आगे भी करें हम, तो ये √6 हो जाएगा √2 इंटू √3 और साथ में x, और 2 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं √2 इंटू √2 और लास्ट में है इक्वल टू 0। दिस इज आवर रफ वर्क हियर, दिस इज द रफ पार्ट, ओके, दिस इज द फेयर पार्ट। तो हमने 2 को भी ब्रेक कर दिया √2 इंटू √2 बिकॉज √2 स्क्वायर इज 2 itself, and similarly √6 we have taken as √2 into √3। तो अब हम इन फर्स्ट टू टर्म्स को देखते हैं। We see that √3 is common and x is also common. Take it outside. एक √3 बाहर और एक √3 अंदर। x स्क्वायर में से एक x बाहर और एक x अंदर, माइनस, अब ये √3x तो पूरा ही बाहर है और यहाँ बचेगा सिर्फ √2। गॉट इट? नेक्स्ट हियर ऑल्सो माइनस, और अब आप देखिए क्या कॉमन फैक्टर है दोनों में, √2, इट इज कॉमन, इसे बाहर ले लेते हैं। और क्या बचा यहाँ पर देखिए, √2 तो बाहर है, √3x विल बी इनसाइड, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, और √2 इंटू √2 में से एक तो बाहर है और एक आएगा अंदर, और देन इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये दोनों फैक्टर्स बिल्कुल सेम मिल रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट टेक इट आउट, √3x माइनस √2, ये हो गया फर्स्ट फैक्टर, लीनियर फैक्टर, और यहाँ से भी सेम मिल रहा है हमें, √3x माइनस √2, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ दिस मीन्स दैट √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, और अगेन √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। और अब हम यहाँ से इजीली रूट्स निकाल सकते हैं दी हुई इक्वेशन के। देखिए आप, दिस विल इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू माइनस √2 विल गो टू द RHS एंड बिकम प्लस √2, और ये √3 यहाँ पर आ जाएगा डिवीजन में, एंड फ्रॉम हियर वी गेट अगेन x इक्वल टू प्लस √2 अपॉन √3. So both the values are coming to be equal, and this means that if we draw the graph, then the parabola will touch the x-axis at only one point and its coordinates will be √2 upon √3, comma 0. Getting the point here? And now we can write the roots of the equation are √2 by 3 and again √2 by 3. Commonly we have written. Got the point? Next we have one more example. Example 6. Find the dimensions of the prayer hall discussed in section 4.1. So in section 4.1 of your book we have this example. We will be doing this one. A charity trust decides to build a prayer hall having a carpet area of 300 square meters with its length 1 meter more than twice its breadth. So if we take one rectangular prayer hall, you will see that according to the question it has been given its length is 1 meter more than twice its breadth. तो लेंथ जो है वो ब्रेड्थ पर डिपेंडेंट है, इसलिए हमें ब्रेड्थ को एक वेरिएबल x से डिनोट करना चाहिए। और आप देखेंगे ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि सेंटेंस में ब्रेड्थ ये जो है ये लास्ट में आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो उसको हम x मानेंगे। आपको समझने के लिए बता रही हूँ कि जो भी वर्ड या जो भी एलिमेंट लास्ट में मिलेगा हमें स्टेटमेंट में, उसे हम वेरिएबल x से डिनोट करेंगे, और इस केस में वो है ब्रेड्थ। और ऐसा इसलिए क्योंकि लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन द ब्रेड्थ, सो वी अज्यूम दैट द ब्रेड्थ इज x यूनिट्स। तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी? इट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ है x
इसका ट्वाइस हो गया 2 टाइम्स 2 इंटू एक्स एंड 1 मीटर मोर सो +1। ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। और अब एरिया हमें दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर। अब हमें इससे क्या निकालना है? व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल? वी बिगिन by assuming the breadth to be x. Let the breadth of the prayer hall be x meters. Then the length of the hall will be twice of breadth plus 1. So 2x plus 1 meters. This will be the length of the hall. According to the question, area of the prayer hall, this is equal to length into breadth. इससे हमें area मिलेगा और ये हमें दिया हुआ है इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। और ये एरिया कैसे मिलेगा? व्हेन वी मल्टीप्लाई लेंथ एंड ब्रेथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा और ये दिया हुआ है इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, यू विल गेट इट 2x स्क्वायर। 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर और x को 1 से किया तो इट विल बी सिंपली x। और इस 300 को हम ले आते हैं LHS में equal to 0 in the RHS. This is the quadratic equation representing this situation. And now today we are going to solve it also. कैसे solve करेंगे देखिए आप, यहाँ पर coefficient of x square it is 2 and here we have the constant term, numerically it is 300. तो हम इन दोनों को multiply करें तो हमें मिलेगा 600। और अब हमें 600 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका डिफरेंस हमें मिले 1। तो अब कैसे ढूंढें आप? देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे ये पेयर मिलेगा। वी स्टार्ट विथ 2, इट विल गो 300 टाइम्स। अब 300 और 2 से तो हमें 1 नहीं मिलने वाला। अगेन बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 5 एंड 0। यहाँ से हो गया 4, 2 2 ज़ा 4 और 150। इनका पेयर भी हमें डिफरेंस 1 नहीं दे रहा है। ऑब्वियसली द डिफरेंस शुड बी 1। अगेन बाय 2, 2 7s and 5 times 75 and this is 8. Again their difference is not coming out equal to 1. Next we divide by 3. It will go 2 times and 5 times. This is 25 और ये देखते हैं कितना बन रहा है. It is 8 into 3 24. Oh yes, this product is 24. आप देखिए और ये है 25. इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 का और इनका प्रोडक्ट आ रहा है इक्वल टू 600। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड पेयर। लेट अस राइट इट हियर 2x स्क्वायर प्लस, अब ये प्लस में है तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर जो है वो प्लस में लेंगे हम 25x और छोटा नंबर हम लेंगे माइनस में, तभी हमें मिलेगा डिफरेंस 1 का और ये हो गया आगे -300 इक्वल टू 0। गॉट इट? कि कैसे हम इस पेयर को सर्च करते हैं? बाय डूइंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर हुज फैक्टर्स वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, नाउ इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। x इज कॉमन, 2 विल बी इनसाइड, x विल बी इनसाइड प्लस 25 और यहाँ से आप देखिए 24 और 300 इन दोनों में कॉमन है 12, टेक इट आउटसाइड। 12 2 ज़ा 24, x विल बी इनसाइड और यहाँ क्योंकि माइनस है तो ये साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा एंड यू विल सी 12 इंटू वॉट डिवाइड 12 2 ज़ा 24 and 60 5 times 60 so 25, 12 into 25 is 300. This is again equal to 0. ये दोनों फैक्टर्स बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं so it is right. इस कॉमन फैक्टर को बाहर ले लिया और अंदर बच गया x minus 12. This is equal to 0. Now this implies that 2x plus 25 is equal to 0 or x minus 12 is equal to 0. This further implies that x is equal to minus 25 upon 2 or x is equal to 12. ये दो वैल्यूज हमें मिल गई वेरिएबल x की और x है क्या चीज़? x is the breadth of the prayer hall and this breadth cannot be negative. तो ये नेगेटिव वैल्यू ब्रेथ नहीं हो सकती है, इसलिए हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे और सिर्फ ये वैल्यू कंसिडर करेंगे। सो वी कैन नाउ राइट सिंस x इज द ब्रेथ ऑफ द हॉल इट कैन नॉट बी नेगेटिव, thus the breadth of the hall is 12 meters and its length will be 2x plus 1 meters. It is the length,
So 2 into 12 plus 1, this will give you 24 plus 1, 25 meters. This is the answer, and you can check your answer by replacing it in the condition given in the question. कैसे? दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए और देखिए कि एरिया 300 मीटर स्क्वायर मिल रहा है या नहीं, and you will get it equal to 300 meters square. So these were some examples in which we learned how to solve a quadratic equation by the method of factorization. In our next class, we will start exercise 4.2 based on this method. Before you watch the next video, try to do those questions once on your own. Goodbye.